So hello everyone, welcome to the video. This is an announcement video since we are going to start with our new batch for anthropology online course. चलिए, so let's see that what will be the constituents of this course, यानी कि इस कोर्स में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं और किस तरह से जो हैं वो कंप्लीट की जाएंगी और उन चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा, आपके आगे रखा जाएगा, आपको समझाया जाएगा. So I have divided this course into 9 themes on which UPSC examination, UPSC paper has been asking questions और the paper setter और जो आपके पास UPSC का पेपर सेट होता है वो आपके पास इन 9 थीम्स के ऊपर सेट होता है. और जैसे जैसे जितना वेटेज यूपीएससी इन थीम्स को देता है उतना ही हम टाइम एलोकेट करेंगे इन थीम्स के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, द एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट, मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इट विल बी गिवन 12 लेक्चर्स सिंस इट इज़ रिगार्डेड एज द हार्ट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी, द कोर ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज को, एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स को, एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स को एंथ्रोपोलॉजी का कोर माना जाता है, एंथ्रोपोलॉजी का हर्ट माना जाता है. तो इसको 12 लेक्चर्स दिए जाएंगे. ठीक है, तो उसी तरह से आपके पास कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, इसको 7 लेक्चर्स दिए जाएंगे. कल्चरल इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज, लाइक फैमिली, लाइक किनशिप, लाइक इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो इनको जो है वो आपके पास 7 लेक्चर्स दिए जाएंगे. देन द रिसर्च मेथड्स इन द एंथ्रोपोलॉजी लाइक फील्ड वर्क and many techniques like schedule method, case study method, interview method, etc. etc. So these will be studied in these 2 lectures. And then the Indian anthropology आपके पास it will be studied in the 7 lectures. ये आपके पास 7 lectures में study किया जाएगा. ऑब्वियसली द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, जो आपके पास ये इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, इट इज़ वेरी मच रिलेटेबल टू द कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज द एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट. फॉर एग्जाम्पल, एन इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट कॉल्ड LP विद्यार्थी, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द आइडियाज ऑफ मरीनोवस्की एज वेल एज रेडक्लिफ ब्राउन. ठीक है, सो मरीनोवस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन, इट विल बी कवर्ड इन द एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट, बट मिस्टर LP विद्यार्थी, श्री LP विद्यार्थी विल बी कवर्ड इन द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पार्ट. And there are many functional structuralists. For example, M.N. Srinivas, he was also very much inspired from the thought or from the method of the Malinowski. ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास बहुत सारे इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे इंडियन सिविलाइजेशनिस्ट ने इंडिया में आके, अमेरिकन सिविलाइजेशनिस्ट ने इंडिया में आके जो है वो काम किया है. दे वर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय the Western thought process or the Western anthropological thoughts. So those anthropological thoughts, they will be studied in the starting 12 lectures. वो starting के जो 12 lectures होंगे उनमें ये anthropological thoughts को study किया जाएगा. फिर उसके बाद subsequent lectures में we will be relating to those anthropological thoughts and then we will be studying whatever will come into our way, like cultural institutions, the research methods, the Indian anthropology, even some of the tribal anthropologists जो आपके पास यहाँ पे आके जिन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल हेमेंड्रॉफ हो गए, so these anthropologists, they have done enormous tribal studies in India, बहुत सारे monographs लिखे हैं. They were also inspired from the Western anthropological thoughts. Anyways, then the problems of the tribals, जो आपके पास tribals को क्या क्या problems face करनी पड़ रही हैं, आप basically the part of the tribal studies, the monographs, the culture of the tribes, how the globalization it is affecting the culture of the tribes, what are the problems that they are facing, the educational crisis that they are facing, the land alienation problem that they are facing, the problem of the indebtedness that they are facing. ठीक है, so they are facing enormous problems. Their cultural heritage, it has been destroyed. For example, dormitories, they have been destroyed.
So there are many studies that has been done on the subject or on the discipline or on the sub branch of the tribal studies. तो इन ट्राइबल स्टडीज़ को वी विल गिव 8 लेक्चर्स, 8 लेक्चर्स इन ट्राइबल स्टडीज़ को दिए जाएंगे. देन द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ऑब्वियसली बिफोर द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड द ट्राइबल पार्ट, द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ये किया जाएगा. ठीक है. सो द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इट विल बी गिवन 14 लेक्चर्स बिकॉज अगेन इट इज़ एन इनॉर्मस पार्ट. यहाँ से जो है वो सवाल पूछा जाता है. सो द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. वन इज कि आपके पास व्हाट आर द फिजिकल एवोल्यूशन इन द ह्यूमन बींग्स. आपके पास जो फिजिकल एवोल्यूशन है या फिर जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है ह्यूमन बींग्स में वो किस तरह से हुआ है. और जो दूसरा है व्हाट आर द वेरिएशंस इन द ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में इस फिजिकल एवोल्यूशन की वजह से कैसे कैसे वेरिएशंस आई हैं. ठीक है. सो दीज वेरिएशंस दे आर अगेन स्टडीड बाय मेंडलियन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जेनेटिकल मार्कर्स, इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी, रेशियल स्टडीज़, फोरेंसिक्स. तो ये आपके पास वेरिएशंस को स्टडी करने के मेथड्स हैं और सवाल भी ठीक इसी तरह से पूछे जाते हैं. और जो पहला है वो है आपके पास फिजिकल एवोल्यूशन इन द ह्यूमन बींग्स. फिजिकल एवोल्यूशन इन द ह्यूमन बींग्स इट कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फिर दोबारा इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. So the first thing is the theoretical part, the theoretical basis of the evolution, and the second thing that we are going to study is the आपके पास जो है होमो एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, ह्यूमंस का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है. ठीक है. हाउ वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपिथेकस टू हैबिलिस टू इरेक्टस टू निएंडरथाल, होमोसेपियन, होमोसेपियन सेपियंसिस. ठीक है. व्हाट इज द कल्चरल एवोल्यूशन, द नॉन मटीरियल कल्चरल एवोल्यूशन दैट वी आर हैविंग विद इट. ठीक है. एंड द मटीरियल आस्पेक्ट ऑफ द एवोल्यूशन, द मटीरियल आस्पेक्ट ऑफ द कल्चरल एवोल्यूशन इट इज स्टडीड इन द आर्कियोलॉजी पार्ट. द आर्कियोलॉजी इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. आर्कियोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. द फर्स्ट इज द वर्ड आर्कियोलॉजी. आपके पास वर्ड आर्कियोलॉजी यानी कि पूरी दुनिया में आपके पास जो मटीरियल कल्चर है वो किस तरह से चेंज हुआ है. द सेकेंड थिंग इज द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और द इंडियन आर्कियोलॉजी यानी कि इंडिया में आपके पास जो आर्कियोलॉजिकल जो मटीरियल कल्चर का एवोल्यूशन है वो किस तरह से हुआ है. ठीक है. दिस थिंग इट विल बी गिवन, दिस थीम इट विल बी गिवन दी 7 लेक्चर्स. ओके. Then applied anthropology. Applied anthropology it will be given 4 lectures. Applied anthropology का मतलब क्या है? Whatever we have studied in the anthropology, how it can be applied in the various aspects of our life. हमारी ज़िंदगी के अलग अलग aspects में इसको किस तरह से लागू किया जा सकता है. ठीक है जी. उसको हम कहते हैं applied anthropology. Okay. Applied anthropology again it is both, आपके पास it is both in paper 1 as well as paper 2. पेपर 1 में भी है, ये पेपर 2 में भी है. ठीक है. Applied anthropology in paper 1 it has been given in as a different section or as a different unit, जिसमें आपके पास forensics आ जाता है, एंथ्रोपोलॉजी इन स्पोर्ट्स आ जाता है, एंथ्रोपोलॉजी इन वॉरफेयर आ जाता है, एंथ्रोपोलॉजी आपके पास कल्चरल स्टडीज़ में आ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन द पेपर 2 देयर आर वेरियस आस्पेक्ट लाइक द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन द regional or in this the study of the regionalism, the study of the nationalism, the study of the globalization, etc etc. तो ऐसे आपके पास छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो पेपर 2 में आपके पास मिलते हैं. So these are the aspects or these are the themes or these are the topics of the applied anthropology. So अगर आप एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं
You have to divide anthropology on the basis of these 9 themes. इन 9 themes के ऊपर आपको anthropology को divide करना पड़ेगा. And in the center of these themes there will be anthropological thoughts. ठीक है, anthropological theories इनके center में रहेंगी. And from the viewpoint of those anthropological thoughts, those anthropological theories, those anthropological perspectives or approaches, we are going to study each and every branch. Okay? Now, what will be the features of this course? So, the duration of the course, it will be 3.5 months, यानी कि करीब 3.5 months का ये जो कोर्स होगा. ठीक है भैया, अब मुझे बार बार कॉल करके ये मत कहना कि 2 मंथ में पूरा करवा दो. ठीक है, ये इट इज़ अ लॉन्ग सब्जेक्ट, इट टेक्स टाइम. ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप जानना चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हो, तो पढ़ने के लिए समय लगता है. ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि मैं आपको कोई मैजिक पोशन दे दूंगा और आप उसको घोल के पी जाओगे और आपका काम बन जाएगा. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट. और ऐसी बचकाने बातें मत किया करो. जो लोग ये बातें कहते हैं कि 2 महीने में एंथ्रोपोलॉजी करवा देंगे, मेरी तरफ से 2 जूते मारो उसको. इट इज़ इम्पॉसिबल. आई मीन टू से इट इज़ इम्पॉसिबल. सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल दैट देयर इज़ अ बिगनर, कोई नया स्टूडेंट है और उसको आप 2 महीने में करवा दोगे. Obviously, he or she has to do some kind of trade-offs between the themes of the subject. तो पूरा जो है वो नहीं कवर किया जा सकता. Anyways, so the duration of the course, it will be 3.5 months. The classes, they will be held every day except the Sundays. And the classes, the duration of the class, it will be from 2 to 2.5 hours each. ठीक है, कई बार बोरियत हो जाती है कई क्लास में मोनोटोनिसिटी आ जाती है, तो उस क्लास को जो है वो जल्दी एंड कर दिया जाता है. बट जनरली द क्लास विल बी 2 hours लॉन्ग, 2 hours to 2.5 hours लॉन्ग. ठीक है, देन व्हाट विल बी द फीचर्स ऑफ द कोर्स? इन द ऑनलाइन क्लासेस वी विल बी डीलिंग विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द स्टूडेंट. कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारा बेसिक एम रहेगा. ठीक है, जो पीछे मैंने सिलेबस बताया उसको भी मैंने आई हैव एनालाइज्ड दैट सिलेबस. ठीक है, उसी तरह से एनालिटिकल प्रोस्पेक्टिव से, एनालिटिकल एंगल से आपका जो ये सब्जेक्ट है उसको पूरा करवाया जाएगा. आपको पूरी तरह से कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी जाएगी. कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब क्या है? दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन योर ओन लैंग्वेज. जो एक बेसिक सा लेमैन वाली बात होती है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपको उसे फंक्शनलिज्म समझाना है, तो आप उसको आराम से बैठा के फंक्शनलिज्म बातों बातों में समझा सको. इसका मतलब होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी. एंड आई गारंटी यू दैट इन दिस कोर्स दिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू. ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ऐसे ही समझाया जाएगा. ठीक है, बाकी चेकआउट माई वीडियोज़ को देख लीजिए ऑन द फंक्शनलिज्म, ऑन द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. दिस इज़ हाउ आई टीच इन द क्लास ऑल्सो. क्लास में भी मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ. ठीक है, ईच क्लास इट विल बी 2.5 नॉट 3 hours. 3 hours जनरली हो नहीं पाते हैं. सो अबाउट 2 to 2.5 hours लॉन्ग जो है वो आपकी क्लास रहेगी. वीकली टेस्ट्स दे विल बी गिवन. एंड जो आपके पास कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस है वो वीकली टेस्ट से ऊपर जो है वो उसको इवेल्युएट किया जाएगा. बिफोर द क्लास इटसेल्फ जो आपके पास नोट्स हैं दे विल बी प्रोवाइडेड इन द PDF फॉर्मेट. ठीक है, वंस यू हैव गॉट द एडमिशन और वंस आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाती हैं, आई विल बी एडिंग यू इन अ ग्रुप. And then in that group in the PDF format the notes they will be provided to you. ठीक है, ताकि इनिशियली आप नोट्स को रिवाइज कर सके, पढ़ सकें. एंड देन व्हेन यू कम इनटू द क्लास और व्हेन यू अटेंड द ऑनलाइन सेशन ऑफ द क्लास,
देयर यू फाइंड, मतलब जो आपका टॉपिक को ग्रैस्प करने की जो क्षमता है, जो टॉपिक को क्लैरिफाई करने का जो आपका थॉट प्रोसेस है वो अच्छा बन सके। ठीक है, सो क्लास से पहले ही आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देन इफ़ लेट्स से आपके पास कोई भी लेक्चर आपका मिस हो जाता है, फर्स्टली आई विल इनकरेज यू दैट यू शुड अटेंड द ऑनलाइन लेक्चर्स। आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कीजिए, लाइव लेक्चर्स जो हैं उनको अटेंड कीजिए। ठीक है, बिकॉज देयर यू विल अचीव द एक्टिव लर्निंग। ठीक है, आप मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकोगे। कोई भी दिमाग में सवाल आता है, चाहे जैसा भी कोई सवाल क्यों ना हो, यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकोगे। इन केस यू आर नॉट एबल टू अटेंड दैट क्लास, आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए, देन आपको सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो O2IS Academy ऐप के ऊपर जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे। एंड दिस एप्लीकेशन इट इज़ ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, इट इज़ ऑन द एंड्रॉयड एज वेल एज ऑन द iOS प्लेटफॉर्म। दोनों में ही आपके पास जो है ये अवेलेबल रहेगी। इफ़ यू वांट टू एक्सेस इट ऑन योर लैपटॉप देन इट इज़ ऑल्सो एक्सेसिबल ऑन दैट डिवाइस ऑल्सो। यानी कि एक्सेसिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्डेड मीडियम में भी मिलेंगे आपको, सो एज यू आर एबल टू ग्रैस्प दिस सब्जेक्ट 100%। ठीक है, एंड इवन आफ्टर दिस कोर्स, इवन इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दी टेस्ट सीरीज़, आप और अपने आप को जो है यू वांट टू इम्प्रूव योर स्किल्स, ठीक है, आप और अपनी जो स्किल डेवलपमेंट है वो करना चाहते हैं, देन दी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस O2IS Academy ऐप। ठीक है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन जो नीचे है वीडियो के नीचे एक नंबर दिया होगा, you can contact them and you can register for the online course. Okay, thank you very much. And even if you have any kind of query, you can contact that number और आपकी जो query है उसको solve की जाएगी। and जो आपके पास फीस है उसको जो है वो कम ही रखा गया है, so as कि जो students क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं बट दे डू नॉट हैव दैट हाई अमाउंट ऑफ मनी, इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, नहीं खर्च कर सकते, तो उनको जो है ये प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर। थैंक यू वेरी मच।